آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جن اہم مقاصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس میں ہمارے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ہمارے حق کے لیے حکومت سے لڑ رہے ہیں اور یقیناً وہ حق ہم کو حاصل ہوگا، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ لیکن دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی امانت کے لیے لڑ رہے ہیں، اس سے اللہ رب العزت بھی ہمارے سے خوش ہوگا۔ ارے ذرا حرکت کرو، کب تک سوتے رہیں گے؟ ہمارے سونے سے یہ KCR بہت جاگ گیا، اب ہم جاگو، اس کو سلانا ہے، اس کو سلانا ہے۔ اگر اب ہم سوتے رہیں گے تو اور سلاتا ہمارے کو، اور یہ بولتا ہے انہوں خالی رمضان کے ہے، ان کو ایک پیکٹ جو نا بریانی کھلا دو، 2 کھجور کھلا دو، انہوں خوش ہو جاتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے یہ، ورنہ اس کی مجال نہیں ہے۔ یہ RSS کی چڈی پہن کے جو ہمارے سامنے آ کے دھوکہ دے رہا، یہ اس کی ہمت نہیں بڑھتی۔ اگر ہم میں اتحاد اور اتفاق رہتا، ہم بیدار ہوتے۔ تو آج جو آل انڈیا مسلم مائنورٹی آرگنائزیشن کی جانب سے جو دھرنا اور جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کیے جا رہے ہیں، ان کے مقاصد آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ اوقافی املاک کی حفاظت کے لیے ہے۔ ابھی ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب نے ایک بڑی بہترین بات آپ کے سامنے رکھا، لیکن آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیا۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ وہ بات کو کتنا غور سے سن رہے ہیں اور اس پر کیا رد عمل جتائیں گے آپ، کہ وقف ملکیت اللہ کی امانت ہے اور یہ مسلمانوں کی جو نا ملکیت ہے۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ آواز اٹھاؤ صاحب۔ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اگر آپ کے میرے دادا 500 گز زمین اگر چھوڑ کے چلے گئے، دوسرا قبضہ کر لیا تو کیا کرتے؟ ارے بولیے کیا کرتے؟ اور سگا بھائی ایک بالی زمین آگے بڑھ کے دیوار اٹھا لیا تو کیا کرتے؟ ابھی حیدرآباد میں ایک مکان کے واسطے خطرہ ہوئے ہیں، باپ بیٹے مان لیے۔ کیوں؟ وہ آپ کمائی تھی، یہ باپ کمائی ہے، اس بات سے جو نا درد نہیں ہے ہمارے پاس۔ عثمان صاحب، یہ آپ کمائی کا درد ہوتا، باپ کما کے رکھا نا، اس بات سے درد نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ملکیت ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ یہ ہمارے جو نا غریب مسلمانوں کے لیے، تعلیم کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے یہ جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، تو اب اس کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ حق ہم کو حاصل کرنا ہے نہیں ہے؟ ابھی ہمارے نعیم بھائی نے ایک بہترین بات آپ کے سامنے کہا کہ جتنے ابھی ہمارے عثمان الحاجی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ 77,000 ایکڑ زمین میں 57,000 ایکڑ زمین چلے گئی، اب بچے کتنے؟ بولو ذرا۔ 20,000 بچے ہوئے، وہ بھی خالی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، یہ بھی نہیں بول سکتے، لیکن ایک ریکارڈ ہے، ابتدائی CBCID کی رپورٹ ہے کہ 57,000 ایکڑ زمین پہ جو نا ناجائز قبضے ہو چکے ہیں، اور جس میں سے 3,500 ایکڑ زمین ہمارا یہ چور جو ہے نا، CR جو ہے نا ہڑپ لیا، یہ KCR جو ہے نا ہڑپ لیا، یہ 3,500 ایکڑ زمین اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ یہ انڈومنٹ کی ذرا ایک گز زمین ذرا لے کر بتاؤ آپ۔ شرم کی بات یہ ہے کہ انڈومنٹ جو ہندو اوقاف ہے، اس میں کی ایک ہی زمین آپ کو نہیں لی جاتی، لیکن وقف کی املاک میں آج سینکڑوں ہندو قبضہ کرنے کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ پٹیل مارکیٹ میں آپ چلے جائیے، کئی جو نا اوقاف کی ملکیاں آج ہمارے مارواڑیوں کے قبضے میں ہیں۔ کیوں؟ پھر ہمارا وقف بورڈ کیا کر رہا ہے، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ وقف بورڈ قائم کیا گیا ہے وقف املاک کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ وقف بورڈ ہی سب سے بڑا چور ڈاکوؤں کا اڈا بنا ہوا ہے۔
सबसे बड़ा चोर डाकू अगर कोई है तो हमारा रियासती वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का चपरासी से लेके चेयरमैन तक, नीचे से ऊपर तक रुश्वतखोर चोरों का अड्डा बना हुआ है। आपकी एक फाइल बगैर जो ना रिश्वत दे के नहीं हटती। अगर आप किसी मुकाम से लाके निशानदेही करे कि फलानी जगह ये 5 एकड़ ज़मीन है, तो ये वक्फ बोर्ड क्या करता मालूम आपको? फौरी जो कब्जा किया उससे कांटेक्ट करके मामला कर लेके आपकी फाइल को जो ना बाजू कोने में डाल देते। अभी उल्टा आपको जो ना बदनाम कर देते, आपको बदनाम कर देते। तो ये ईमान फरोश, ज़मीन फरोश जो अपनी मौत को ये भूल गए हैं, ये बराए नाम के मुसलमान हैं। याद रखो, वक्फ बोर्ड का कोई भी मुसलमान आपके सामने आए तो उसको कभी मुसलमान नहीं समझना। उसके पेशानी पे गट्टा जरूर होगा, दाढ़ी में रखा हुआ है उन्हें, लेकिन आखिरी चोर वक्फ बोर्ड का अमला नीचे से ऊपर तक चोर है। और उससे बड़ा जो है ना चोर हमारा चेयरमैन है। पहले का भी था, उन्हें बड़े हाथा मारता था, इन्हें छोटे मारा। कोई दूध का धुलावा नहीं है, समझ में आया? हाँ, उन्हें बड़े बड़े मारता था। सिंगी चल्ले की जो है ना उन्हें तकरीबन 3-4 हज़ार एकड़ ज़मीन, इसके पेपर जो है ना मैं निकाल के शो करा, पूरे डाल लिया। 100 एकड़ ज़मीन जो है ना बाप की मिरास से बोल के रिश्तेदारों के नाम पे कर लिया। 2004 की बात है, जब बाबू का दौर था। उन्हें बड़े मारता था, इन्हें छोटे मार रहा, इन्हें मामेदारी कर रहा। अरे आशुर खाने शहीद कर दिए जा रहे। हमारी शिया बिरादरी को होश नहीं है, क्योंकि वो भी मिले हुए हैं वक्फ बोर्ड में, कोनो भी है वो भी मिले हुए हैं। मैं समझा था अंबरपेट का आशुर खाना जो गिराया गया, हमारे शिया बिरादरी गड़बड़ करेंगी, नहीं, सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। तो यानी ये जो पिशानियों पे गट्ठे रखे आ रहे हैं आपके सामने, इनको नमाजी मत समझो, बड़े डाकू हैं ये, बड़े डाकू है ये, और यही हमको तबाह करने वाले हैं। बचपने में हमें कहानी सुने थे, आपको भी याद होगा। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया, तो तमाम झाड़ जो ना रोना शुरू करे। तो पुराना दरख्त बूढ़ा झाड़ पूछा क्या बात है, क्यों रो रही? तो बोले लकड़हारा अरब हमारी जान जाती, हमारे को काटता। तो उसने कहा कि देखो, जिस चीज से वो हमको कत्ल करने के लिए आ रहा, क्या उसमें जो ना हमारा कोई भाई है, हमारी जात वाला है? तो कुराड़ी का दस्ता कहीं का रहता, कहीं का रहता, लकड़ी का ना। अगर दस्ता नहीं रहा तो कुराड़ी काम करती नहीं करती। तो घर को आग लगती है तो घर के चिराग से, घर को आग लगती है तो घर के चिराग से। आज मुसलमानों को जो नुकसान हो रहा है तो वो मुसलमानों से हो रहा है, वो मुसलमानों से हो रहा है, वो जमीन फरोशों से हो रहा है। वो ये भूल चुके हैं कि एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। अरे कौन क्या लेके गया जो तुम लेके जाने वाले हो? आए वक्फ बोर्ड में काम करने वालों और चेयरमैन, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारे बाप दादा दुनिया से क्या लेके, तुम क्या लेके जाओगे? तुम क्या लेके जाओगे? न गोरे सिकंदर, न खबरे दारा, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम क्या लेके जाने वाले हो? सिकंदर दुल्खनैन जो मशरिक और मगरिब का बादशाह था, रोए जमीन पर उसकी हुक्मरानी थी। जब अल्लाह ने उसको हिदायत दिया तो तमाम जमीन को जिसके हवाले थे हर एक की हुकूमत को तकसीम कर दिया, और उसने वसीयत किया कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो मेरा जनाजा इस तरह लेकर जाओ कि मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रहे, कफन के बाहर रहे। तो लोगों ने पूछा कि ऐ शहंशाह, हाथ तो नजदीक किए जाते हैं, आप खुला रखने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं ये दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं मशरिक़ और मगरिब का बादशाह था, लेकिन जब दुनिया से जा रहा हूँ तो दोनों हाथ मेरे खाली है, दोनों हाथ मेरे खाली है। तो तुम क्या लेके जाओगे? आज सैकड़ों एकड़ जमीनों पे कब्जे कर लिए, आज जायदाद बना लिए। याद रखो, ये हराम की दौलत, ये हराम का पैसा तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, और तुम जिसके लिए छोड़ के जा रहे हो वही तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं, वही तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। और जब आखिरी वक्त आएगा तो बच्चे जो ना आपका इलाज करने को नहीं पूछेंगे बाबा कहाँ कहाँ छुपा के रखे, बता के जाओ। अब तो भी बता के जाओ, कागजा कहाँ रखे, हाँ।
और ऐसे नाखलफ है। एक बच्चा मेरे पास आया, आके बोला हजरत बोले मेरे वाली साहब जो है ना 6 दिन से सकरात में है, दम नहीं निकल रहा, क्या करना। मैं बोला बेटा जायदाद कितनी है, 2 मकाना है, पैसे भी है। बोला एक काम कर ले, इंतजार कहीं पर लंडी मत दे। अरे क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं क्या? तू चाह रहा जो बेचारा जो ना संक्रांत में 4 दिन से तेरे को खर्चा करने को मौका नहीं मिला, क्या करना पूछ रहा है वो नालायक। तो उस बात के ऊपर अफसोस है कि जिसने जो है ना मेरे बच्चों को क्या छोड़ के जाऊं मिल के ये हराम की दौलत छोड़ के गया, उसका खुमियाजा भर रहा है। अगर वो जमीन जायदाद नहीं छोड़ता तो ये हशर होता नहीं होता। तो हमको चाहिए हमारे हक के लिए आगे बढ़ना है, लड़ना है। और हम ये हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा नहीं, तुम जो ऐलान करे थे हम उसको याद दिला रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर दिया जाए, जब तक कि हमारी ये तहरीक हम खामोश नहीं बैठेंगे। और हमारे नईम साहब ने तो तजवीज़ रखी है कि बेघर मुसलमान को जो बची हुई जायदाद है सबको 100 गज मिलना चाहिए लीज पर, किराए पर। जरा बताओ खाने मजा जरा इधर है नहीं है, होना नहीं होना। हम ये मुतालिबा करते हैं कि 100 गज जमीन बेघर मुसलमानों को कानून के तहत भी खैरात नहीं होना। एक इसमें 2 फायदे हैं, एक तो जो ना जायदाद की हिफाजत होगी और दूसरे वक्फ बोर्ड को जो ना आमदनी भी आएगी। तो आमदनी होने तो 2 बातें याद आ गए। हमारे सदर साहब इजाजत है, अब ये वक्फ बोर्ड की आमदनी जो आ रही वो कहाँ जा रही साहब? कोई पूछ रहा, कोई जाके हिसाब देख रहा, किस पे खर्च किया जा रहा? करोड़ों अरबों रुपए जो ना जायदाद के आ रहे हैं, किराए आ रहे हैं, दरगाहों के टेंडर के पैसे आ रहे हैं। और आपको जो ना शर्म की बात है कि हमारे जो दरगाहों के वक्फ बोर्ड के अंदर में जो टेंडर दिए जा रहे हैं वहाँ पर वाहनम पूजा की जा रही है, नागा पूजा की जा रही है, बंदिश के लिए सामान दिया जा रहा है। एक इस्लामी इदारा है और दरगाहें जो है ना रूहानियत के मरकज़ है। और वो जो साहिब मदार है उन्होंने दीन के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान की, वक्फ कर दिया उन्होंने दीन की तबलीग के लिए। आज उनकी बारगाहों में ये शिर्क और कुफ्र के जो है ना वहाँ पर जो है ना उससे पैसे लिए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हम इसके लिए फतवे जो है ना हम जमा कर लिए हैं और इसके लिए हम जो है ना वो बाकायदा उसको टेंडर में रखा गया है। अफसोस की बात तो ये है कि उसको हर्राज किया जा रहा है कि इसके भी पैसे लो। तो हम ये भी ख़त्म करने के लिए अब हम इसकी तहरीक शुरू कर रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये तमाम मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल अलग नहीं है, यूनाइटेड फेडरेशन अलग नहीं है और ये माइनॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन है अलग नहीं है। हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है। हम एक साथ खाने पे खाना लगा के चलेंगे और ये तेलंगाना सरकार से हम अपना हक लेंगे। खाना बदोश होके जिए भी तो क्या जिए, उठिए और उठ के अपना मकान छीन लीजिए। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे 10 बजे, शाम 6 बजे तक 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।